पश्चिमी बंगाल ਦੇ ਵਿੱਚ टीएमसी ने ਜਿੱਤ ਦੀ हैट्रिक बनाई है। ममता बनर्जी ਦੀ पार्टी ने 200 ਤੋਂ ਵੱਧ सीटां हासिल करके स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। जिੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ममता बनर्जी ने की किया ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ बीजेपी ने ममता बनर्जी ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ। Don't worry for Nandigram. Forget one thing. For struggle, you have to sacrifice something. I struggle for Nandigram because I fought a movement. So I have forgotten now. It's okay. Let the Nandigram people, whatever they have given the verdict, I accept that. I don't mind for that because it's a match. It is nothing. So we won more than 2-1 seat. That is a landslide victory. And BJP has lost the election and they have played so many dirty politics, dirty tricks. Even all the officers are saying, with high officials, you are under watch, you are under watch, you are under watch. I know each and everything. So it's okay that we have faced the horrible situation, we have faced the horror of the election commission, but ultimately I will go to constitution bench because whatever they have done for this time in Bengal, the bias, in the bias way, if you tolerate like this, then India, there will be no democracy. Regarding oath-taking ceremony, we will do a very small way because COVID is in process, and I appeal to all of my workers not to go for any victory rally or anything right now because we will do the victory rally after the COVID situation is over. And now we have to work for COVID, and I will request the central government to give free vaccine to all the peoples, 140 crores people. It is a matter of only 30,000 crores. So 30,000 crores is nothing for a central government, and they have the Reserve Bank and they have the other capacity. So if not, then I will start my movement. I will fight for COVID and fight as a street corner. I will start my Ahimsa movement in front of Gandhi statue also. Today I just said all this. So many people, they congratulated us. We are so grateful. Individually, I am going to thank them, but collectively also I am telling, we are thankful and our humble regards to everybody, everyone and everybody. So please give us blessings. वेस्ट बंगाल के विधानसभा चुनाव में जो जनता ने मैंडेट दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। हम एक विपक्ष की भूमिका में रहेंगे। जनता का मैंडेट है, हम इसको स्वीकार करते हैं। और ममता जी, आपको बधाई देते हुए विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम एक सक्षम विपक्ष की भूमिका में सदन में रचनात्मक, जहां पर भी आवश्यकता होगी विकास में, हम आपका सहयोग प्रदान करेंगे। एक बार फिर से आपको बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही निवेदन भी है कि प्रदेश के अंदर एक अराजकता का माहौल बन गया है। हमारे कार्यालयों को आग लगाई जा रही है, हमारे कार्यकर्ताओं के घर में पथराव किया जा रहा है, महिलाओं की पिटाई की जा रही है। कम से कम इस प्रकार की अराजकताओं को रोके, अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासित में रहने की सलाह दें। 2016 में केवल 3 सीट थी, अभी 78 प्लस सीट में लीडिंग में है। नेशनल प्रेसिडेंट नड्डा जी के नेतृत्व में हमारा कार्यकर्ता बहुत कड़ी मेहनत किया है वेस्ट बंगाल में। मोदी जी और अमित भाई जी सभी उधर वेस्ट बंगाल लोगों को हार्ट जीतने का प्रयास किया, बट टीएमसी का गुंडाइज्म जीत गया है। कड़ी मेहनत के कारण 36% के ऊपर वोट मिला, 78 सीट मिला है। उधर हमारा निरीक्षा विफल हुआ, कारण है लेफ्ट पार्टी एंड कांग्रेस पार्टी शून्य संपादन किया है। इसके लिए उनके शून्य संपादन बीजेपी विरोधी वोट इकट्ठा हुआ और पूरा टीएमसी के मिला है। इसके लिए टीएमसी गुंडाइज्म जीते हैं। सर, मैं 1 साल में हम देखा था इसको, टीएमसी का मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, एमएलए सब लोगों को बीजेपी साइड में आ गया। अभी 20 साल में कैसे चलेगा, फिर आ जाएगा सकते हैं? 40 साल से 30 साल का लेफ्ट पार्टी सरकार, 10 साल का टीएमसी का सरकार, उधर डेमोक्रेसी नहीं है, केवल गुंडाइज्म है।
डेवलपमेंट भी नहीं है, पॉवर्टी ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है। इसके खिलाफ करने का बीजेपी नया सपने से कड़ी मेहनत की है। हम लोग इस बार विफल हुआ, हमारा विश्वास है। 1984 में बीजेपी केवल 2 सीट जीते थी, अटल जी भी हार गए थे और अडवाणी जी हार गए थे। उस समय अटल जी एक मंत्र दिया हम लोगों को, न दैन्यम न पलायनम। बाद में कड़ी मेहनत करके करके अभी हाईएस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स ज़्यादा स्टेट में बीजेपी सरकार है। वेस्ट बंगाल में भी अगले दिन बीजेपी का सरकार बनाएंगे, निश्चित है। स्ट्रांग अपोजिशन पार्टी के रूप में हम काम करेंगे। डेवलपमेंट के वेस्ट बंगाल के डेवलपमेंट के साथ कोऑपरेशन भी करेंगे और टीएमसी का गुंडाइज्म के खिलाफ हम फाइटिंग भी करेंगे। सर, एक महीना में एमके स्टालिन अंदर डीएमके आदमी लोग सेवरल टाइम सवाल कर दिया, ईवीएम सबको बात कर दिया। अभी एवरीबॉडी इज वेरी साइलेंट। आई होप ईवीएम के खिलाफ इस बार विरोधी लोग आरोप नहीं किया। उन्हें जीतेंगे तो जनता मैंडेट बोलता है, हारेंगे तो ईवीएम के ऊपर आरोप करता है। आई होप इस बार ईवीएम के ऊपर संतृप्त है, समाधान है। Sir, this time everybody is one victory that the BJP has got, that BJP candidate is entering inside the TN assembly. कितना सा हैप्पी? हाँ, आप इधर बहुत कड़ी मेहनत किए हैं, मुरुगन जी के नेतृत्व में वेल यात्रा किया और अच्छा कोऑपरेशन एडीएम के कार्यकर्ता और नेता भी लोग अच्छा कोऑपरेशन भी किया है चुनाव में। हमारा विश्वास, ज़्यादा सीट का विश्वास थी। पहले बार 2001 के बाद 19 साल के बाद हमारा एमएलए असेंबली एंटर कर रहा है, ये बिगिनिंग है। मेरा विश्वास है आने वाला दिनों में और ज़्यादा मेहनत करके और डेवलपमेंट के पूरा सपोर्ट भी करके तमिलनाडु लोगों को विश्वास जीत करके हम लोग पार्टी स्ट्रांग करेंगे, मेरा विश्वास है। So the last one, Sun politics is continuous in Tamil Nadu of ISIS challenge. दौर्भाग्य है, तमिलनाडु का दौर्भाग्य है। डायनास्टी वर्सेस डेमोक्रेसी का चुनाव थी, डायनास्टी जीत गए, डेमोक्रेसी हार गए, तमिलनाडु का दौर्भाग्य है। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ABP Sonja, जोश जज्बा जुनून।